muscle which has more than one nuclei? What's the shape of skeletal muscle? What is the appearance of a skeletal muscle? Because of? I can say alternate dark band and light band. Which is a dark band, which is a light band? A band, dark band is made up of which filaments? Myosin protein filaments. And light band is made up of actin filaments. In which band do you see overlapping? What is a non-overlapping zone of dark band known as? Wonderful, Samreen. High five. Sit down. Next. Acha, you tell me a uninucleated striated muscle. Which is that? Cardiac muscle. What is the shape of cardiac muscle? Shape तो नहीं है, वो appearance है. Shape. Especially बोला था this is the only muscle which shows dash. How do we connect one cardiac muscle to another? तो वो इंटरकैलेटेड कैसे होते हैं? सीधे सीधे प्रेजेंट होते हैं, टेढ़े मेढ़े प्रेजेंट होते हैं. तो टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं वो? क्योंकि कार्डियक मसल कैसी होती है? कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है. अब सर कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, स्ट्राइएटेड विद इंटरकैलेटेड disc. Next. What's the shape of smooth muscle? What type of protein filaments do you see in smooth muscle? Smooth muscles are dash in nature, in action. We control them or we don't control them? Wonderful. Sit down. Next. Can you tell me what is the location of smooth muscle? Very good. Very good. खून निकल रहा है. Of? Lining of? Lining of blood vessels. खून निकल रहा है. कहाँ से निकलता है? Blood vessel. Lining of gut, lining of blood vessel. Sit down. Next. Can you tell me what is the contractile unit of a muscle fiber? Basic contractile unit of a muscle fiber. Dash is known as the basic unit of contraction. I was expecting you to answer it. You know it. What is the basic unit of contraction in a skeletal muscle? Don't know it? Yes, Priyansha. Next turn is yours, na baby? मैंने कब बोला नहीं, मैंने बोला कि आप बताओ. हाँ, sarcomere extends from dash to dash. Blue वाली lines नहीं, what is it known as? रट्टा नहीं चाहिए. A sarcomere extends from dash to dash. नहीं, you need to know it. पेपर में बना के थोड़ी बताएगी कि मैम मेरे को आता नहीं है, OMR में मार्क नहीं कर रही, पर मैं बना के दिखा दूंगी जब आप मेरे घर आओगे पूछने. नहीं, you need to know it means you need to know it. 10 times, 5 times each. Next. नहीं. I want word. If you can't tell me the word, you write it 10 times. Next. Okay. You tell me. We say that during muscle contraction, nothing shortens. Nothing shortens. But there is contraction, there is relaxation.
Why and how it happens? Because the protein filaments, इसको क्या बोलते हैं? नो, कोई चीज़ छोटी नहीं होती बट फिर भी कॉन्ट्रैक्शन होती, क्योंकि जो आपके प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आई एम सॉरी कामना, बट वो घूमते घूमते क्वेश्चन आप पे ऐसा आया कि थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया. आई वुड हैव आस्क्ड यू अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं. ट्राई. विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल? अच्छा, आइडिया है? एवर हर्ड ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? नहीं, बिकॉज द मायोफिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर. कुछ भी छोटा नहीं होता है, बट एक मसल फाइबर का जो प्रोटीन फिलामेंट है वो दूसरे प्रोटीन फिलामेंट पे क्या करता है? स्लाइड करता है. आपको पता है कौन सा वाला स्लाइड करता है? एक अपनी जगह पे रहता है, दूसरा उसके ऊपर चलता है. चलो आई गिव यू अ हिंट. मोटा बंदा भागना प्रेफर करेगा कि पतला? पतला कौन होता है? एक्टिन की मायोसिन? यही तो. मोटा माने मायोसिन. एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन. ठीक है, यू राइट ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट 2 टाइम्स ईच. नेक्स्ट, आपको ये लिखना है पतला मोटा कौन है, आपको ये लिखना है स्लाइड कौन करता है, और आपको ये लिखना है कि शॉर्टनिंग नहीं होती, क्या होती है? ओवरलैपिंग, स्लाइडिंग होती है. नेक्स्ट, चले आप मेरे को बताएं बेटा कि व्हेन वी कंपेयर द स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है, वी कंपेयर देम इन देयर शेप, वी कंपेयर देम इन देयर फंक्शन, ठीक है, which amongst them extends from आई बैंड, जो मिडिल होता है आई बैंड. यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मिडिल लाइन होती है आई बैंड की? जेड लाइन. It extends between 2 consecutive Z line. 10 times. Shoot. हाँ, आधी में. ओके, कोई बात नहीं. Give me 2 properties of muscle as a cell or as a tissue. It is dash and dash in nature. Contraction. And it's contractible and I told 10 times. 10 times, I remember very well. नहीं, हाँ, between 2 Z lines होगा, Z line नहीं होगा. And I told that every muscle cell and nervous cell at rest is polarized. If they get active, they depolarize, है ना? So when you turn a polarized to a depolarized, आप उसको क्या कर रहे हो? एक्टिवेट कर रहे हो. इस एक्टिवेशन को हम एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? It is being it's contractible and excitable. 5 times. Sakshi. अच्छा, what is the potential of a resting muscle membrane? एक मसल रेस्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, पोलर है, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पोलर है तो मैंने चार्ज है. कौन सा? कितना नेगेटिव? 50 times. -70 millivolt. This is something which you should know. आप नहीं आए थे इसीलिए सवाल आपसे पूछा, नहीं तो कुछ और पूछती. अरे फटाफट. नेक्स्ट, सी यू कैन ऑलवेज हैव अ लेड बैक एटीट्यूड ऑफ कमिंग टू क्लास नोइंग नथिंग, कि मैं तो कल एब्सेंट थी, मैं नहीं भी पढ़ूंगी तो भी चल जाएगा. आप नहीं आए थे, you were supposed to take notes from somebody, you were supposed to read it baby. अभी सर ने लेक्चर दिया कंसिस्टेंसी, हाउ विल आई वर्क आउट? हाँ जी, ओके, यू टेल मी, when we talk of muscle and we talk of muscle contraction, what is the membrane of a muscle cell known as? Okay, cytoplasm known as what is the ER known as?
What is the storehouse of ER of muscle? Calcium. Why do we need calcium? Because it binds to the it frees the binding sites on actin, so that Give me the components of actin filament. actin, troponin, tropomyosin. Sit down. Good. High five. Next. Okay. So EXCI TABLE. लिखा काम ना? एक सेकेंड में. मायोसिन इज थिक, एक्टिन इज थिन. और मायोसिन ओवरलैप नहीं करता राजे. कौन ओवरलैप करता है? एक्टिन. एक्टिन इज विच स्लाइड्स ओवर मायोसिन एंड ओवरलैप्स इट. ठीक है, मायोसिन ओवरलैपिंग नहीं होता, मोटा मोटा ही रहता है, वो एक ही जगह रहता है. एक्टिन स्लाइड करता है. हाँ जी, तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? It extends between and Z line, between two consecutive Z line. Sit. हाँ जी, हम कहाँ थे? वैसे मुझे याद था जो ब्लू लाइन वाली थी ना, उसी के पीछे. बट वही ब्लू लाइन ही तो नहीं बोलनी राजे. वी हैव टू बी प्रिसाइज. प्लीज अंडरस्टैंड. आपका इतना सा भी डाउट, आपका ब्लू लाइन का ब्लैक लाइन बन जाएगा, पता ही नहीं लगेगा. और वो कब ब्लैक लाइन -5 हो जाएगा वो भी पता नहीं लगेगा. हमें वो -5 ही कम करना है. वी हैव टू वर्क ऑन आवर पॉजिटिव्स. ठीक है. आई टोटली फॉरगॉट वेयर आई वाज. कोई बात नहीं. वी टॉकिंग अबाउट मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल टिश्यू, cardiac muscle, smooth muscle, and skeletal muscle fiber. What else did we read yesterday? Anybody? Can I have a notebook? We read about cartilage yesterday. Yes. What is the protein present in cartilage? What are the different types of cartilages? Hyaline, elastic and fibrous. Where do you find fibrous cartilage? Fibrous cartilage. Two more questions away from intervertebral. May I take this call, please? Excuse me. Hello? Very, very happy birthday, Hermione. What's up? I was in the middle of a class, but I never wanted to miss your call. क्या कर रही है आज? क्या कर रही है आज? क्या बात है? Oh, cool. चल, enjoy your day. जब free हो जाए, आज ऑफिस में working, preparing for the party. मैं कहा preparing for the party. सही है. ठीक है, सब आ जाएंगे ना, उनसे प्रिपरेशन करा लियो. मैं कहा जब सब आ जाएंगे उनसे ही प्रिपरेशन करा लियो. ठीक है, चल. हैप्पी बर्थडे. आई वांटेड टू कॉल एंड विश यू. Oh my God. चल ठीक है. I'm in the middle of the class actually. I'll rush. I'll call you once I'm free. Okay, bye. Sorry, that's my best friend's birthday today. हाँ. Yes. Okay. मैं तेरे क्वेश्चन पे हमेशा अटक जाती हूँ. हम बात कर रहे थे cartilage. We talked about types of cartilage, which is the location of fibrous cartilage. You did not answer me. You tell me what is the shape of cartilage cells? D shape. D shapes, blunt, angular, and they're present where in a cartilage tissue? Lacunae. They're present in the lacunae of the cartilage tissue. What is the nature of the ground substance of cartilage? It is less calcium. If nature means property. Potential of muscle when it is at rest or when it is excited? Write it. Non-pliable. Very good. It's non-pliable
Very good. Non-pliable? and Non-pliable? pliable. Pliable. It is pliable. What is non-pliable? Bone. Why is it non-pliable? Because it has calcium in it. Calcium where in it? What is calcified? What is calcium? Bone. What is calcified in bone? You caught in your own loop, baby. The ground matrix is calcified, which is present in the form of concentric circles called Lab. 5 times Haversian system diagram. You keep standing and you write it. Khade, okay. Diagram of Haversian system 5 times. Next, please. Hanji. So we talked about blood last time. Interesting topic. Chale, Vineet. Good that I got it on you. Fine. You tell me what is the percentage of plasma in blood? 55. What is the percentage composition of fluid in plasma? 92%. Can you tell me the types of proteins which are present in plasma and function? Types of proteins. We have 3 types of proteins which are present in plasma. Globulin, albumin और एक thromboplastin. नहीं, globulin, albumin एक और था. Albite thromboplastin, what does it do? Thromboplastin clotting factors. It's a clotting protein. What is the role of albumin? Albumin osmotic regulation. And what's the role of globulin? Antibodies, immunity. It provides immunity. Okay, 4th question for you. Can you tell me what is the lifespan of each type of blood cell? There are 3 types of blood cells, name them and their lifespan. Erythrocytes का 20 days. Platelets का 48 hours. और leukocytes का 10 to 15 days. Perfect. Can you tell me what is serum? If I have to differentiate between blood and serum, what is the difference? Difference of RBCs and larger proteins. What if I have to write it in an equation? Serum is equal to blood minus dash. Serum is equal to blood minus RBCs. नहीं serum में RBC होता है. Sedimentation Samreed? Clotting factor. Serum is blood minus clotting factors, not anticoagulants, clotting factors. जब blood clot ना करे, हम सीरम कलेक्ट करते हैं कि वो क्लॉट ना करे, तो उसमें से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं. जब वो वायल होता है पैथोलॉजी लैब में, जब आप ब्लड सबमिट करते हो तो उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? एंटी कोआगुलेंट्स. तो वो कोआगुलेंट्स को क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं. तो जो बच गया वो क्या हुआ? ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. अब वो ब्लड क्लॉट करेगा. तो सीरम इज कैसे? मतलब वो फिर क्लॉट कर जाएगा तो यूज नहीं करेगा ना क्लॉट, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर और एंटीकोआगुलेंट्स ने क्या करा? आपस में क्लम्पिंग कर ली. तो वो ब्लड क्या हो गया? फ्री ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गया. तो प्लीज राइट इट. सीरम इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. सीरम इज ब्लड माइनस clotting factors. But good guess. I liked your way of thinking. कि सीरम में तो हम आरबीसी काउंट करते हैं, सीरम का तो हम एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट देखते हैं, तो मतलब उसमें आरबीसी होता है. गुड. सिट डाउन. सो इवन इफ यू थिंक लाइक दैट कि तुमको आंसर नहीं भी आता है, बट एटलीस्ट यू कैन लिंक इट टू 4 डिफरेंट थिंग्स एंड फाइंड द राइट आंसर. कि नहीं जो बोला वो गलत था. इज व्हाट आई वांट यू टू थिंक एंड डू. बेटा नहीं आता कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू कैन लिंक एंड फाइंड द आंसर. ठीक है, चले जी. आप मेरे को बताएंगे ब्लड के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ? गिव मी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. वी आर डन. इजी वन है ना. Blood is red in color, सो लिम्फ इज व्हाट इन कलर? white, yellowish. ओके, कलर हो गया. Blood consists of RBCs, WBCs, and thrombocytes, lymphocytes, RBCs, WBCs and platelets, and on the other hand lymph contains lymph contains
lymph is basically a quick tissue fluid. Which contains which cells? RBC, WBC, platelet, all three, only two, only one, none. If the option comes lymph contains dash number of blood cells, 1, 2, 3, none, what will you mark? One Which one? plate. WBC. Third point of difference. When you know WBCs, why did you say platelets? ऐसे ही चलें, ठीक है. Third. Blood consists of plasma and वो 45% होता है. ब्लड सेल्स हमने बात कर ली. प्लाज्मा लिम्फ में भी होता है राजे. कलर में डिफरेंस है, ठीक है, सेल्स में डिफरेंस है, और कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक anybody who can help me with organic inorganic, try. Which is more in blood, which is less in blood, which is more in lymph, which is less in lymph? Lymph में inorganic नहीं आ रहा है. Parul. लिम्फ में इनऑर्गेनिक ज़्यादा होता है, नहीं कम होता है, और ब्लड में ज़्यादा होता हाँ, और प्रोटीन ब्लड में हाई होता है, फैट कम होता है, और लिम्फ में फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है. Bingo, very good Parul, very happy. Sit down, sit down. Write it twice. All the differences twice. हो गया diagram? Wonderful. Where's lacunae? अच्छा. और ये सेंटर में क्या है? तीन त्रिमूर्ति. और ये है क्या सेंटर में? ये है जिसमें वे अरे aversion फिलहाल लेबल इट. ओके, सी, this is 1% strict version of me. Okay? I don't want you to show the 100% strict version of mine. You won't like it. Because I've been held back by him. मैम टेस्ट आज मत लो, मैम अभी रुक जाओ, बच्चों को सेट होने दो. तो आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट. अदरवाइज आई टेक टेस्ट इन एवरी क्लास ऑफ माइन. my way of teaching is test post every class. मतलब क्लास खत्म हुई और बुक्स नोटबुक सील्ड, 15 minutes टेस्ट इज व्हाट इज द आइडिया. हमसे इतना नहीं होगा. बिल्कुल होगा, बट इफ यू रीड एंड कम. I don't prefer taking oral test because it takes relatively more time. Believe me. Written test में क्या है, सबका एक साथ 15 मिनट में निपट जाता है. यहाँ पे क्या है, मुझे इंडिविजुअली सबसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, which gives me an idea how much you know, which gives me an idea how much you can know and how much you want to know. Sakshi, cheer up, it's okay, it happens. ठीक है. So please understand, it is how much I can give plus how much you can take. And it's give and take beta. The result is going to come from give and take. Ultimate result is आपके पेपर में नेगेटिव कम, पॉजिटिव ज़्यादा होने चाहिए. You all have given your NEET exam once, except few. ठीक है. I want कि जो गलतियाँ आप कर चुकी हो वो गलतियाँ आप रिपीट नहीं करो. How many of you have written the paper of 2020 as well? मतलब वैसे प्रैक्टिस के लिए दिया. हाँ, प्रैक्टिस के लिए. Do you have your OMR? Which questions you did wrong? हमने बायो में कौन से गलत क्वेश्चन किए थे? अपीयर नहीं हुआ था, मैंने घर पे आके बस देखा था. नहीं, जो अपीयर हुए थे, कौन अपीयर हुआ था 20 में? लेट्स डिस्कस इट वन डे, फाइंड आउट टाइम. ठीक है. किस किस ने 21 वाला पेपर दिया था ये अभी जुलाई में? अभी 2021 वाला 21-20 ये हाँ, मतलब 21-22 वाला बैच. देयर इज अ सेशन 2021, देयर इज अ सेशन 21-22. 21-22 किस किसने दिया? हाई, बिग हाई. Only Apsar, Parul and Dipali and Kamna have not given. Rest everybody else is given. ठीक है. I want one extra class with you. ठीक है. Where we discuss which questions you did wrong.
huh? Not with our regular class. That is where we discuss where you went wrong, so that we can work on the ideology, how we are supposed to correct it. We can do it this way also. Since we have 100 questions, we can divide it into 4 parts, 25 questions each time. We take 4 extra classes, 1 a week. Okay? Within a month, the coming month, we prepare ourselves with an ideology where we went wrong, where we don't have to go wrong. Agreed? Yes? And I want you to choose one particular set, because everybody would have got a different set, everybody would have got a different question number which has gone wrong. Okay? So I want you to choose one set and let me know that we will choose this as a master paper and we'll decide according to it कि इसमें आपने कौन सा गलत किया था, कौन सा सही किया था. पेपर में आएंगे एक ही. मेरे पास पेपर है. हाँ ले आना उसी में. मैम आप कोड बता देना. ओके, पी वाला था, ए वाला था, कौन से कोड्स थे? पी क्यू आर. PQRST तक रहता है. पी क्यू आर एस टी. सो विल टेक टी. ठीक है. इस बार मुझे आर मिला था. आर Whatever, we'll take up T. It's easy. I'll take T1. Okay, we'll take T1. I'll find if I get whatever I get, I'll let you know. I'll give its copies to you. We'll discuss it on the PowerPoint side. We'll discuss it each question in the form of a PowerPoint. Individual question, your opinion, why it went wrong. ठीक? You're supposed to stand and write. 2021 wala paper was easy. This year paper was also easy. I'll tell you why it was a little edge over other papers. It had many multiple statement questions. It had assertion reason questions. It was lengthy. It was tricky, but it was easy. सब कुछ ऐसा था जो आपने पढ़ा हुआ था, but सब कुछ ऐसा था जो आपने पढ़ा हुआ था बट ऊपर ऊपर से. वो 2 क्वेश्चन करी तो मेरे गलत हो गए. मैं सी करके फिर काट के मैंने डी कर दिया. मार्क करते वक्त नहीं आया कॉन्फिडेंस कि जब आप 100% श्योर नहीं हो कब वो ब्लैक लाइन ब्लू लाइन हो जाएगी, यू विल नॉट कम टू नो. आई एम नॉट श्योर वाला बात आ जाएगा. लाइक यू न्यू इट्स WBCs बट स्टिल यू सेड प्लेटलेट्स. दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग. इसी पे वर्क करना है बस हमें. ठीक है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाई आई टेल यू, have you been solving 50 questions a day? How many of you are not solving 50 questions a day? Be true. Let's face it. I want you to time yourself and solve 50 questions a day. It's okay if you solve the same 50 questions every day. But I want you to time yourself and mark those 50 questions. Why? Because in paper, your time management is even more important than your concept. अगर तुम हारे हाथ पैर फूल गए, पहले 4 क्वेश्चन देखे तुमको नहीं आते, हाँ, तुमने 4 क्वेश्चन में ही 15 मिनट लगा दिए. So what will happen? You are left with only 45 minutes and you are left with 96 questions. Your mind is going to go haywire. मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस करने, मेरे पास टाइम नहीं है. जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी आप गलत कर दोगे जल्दी जल्दी करने के चक्कर में. So I want कि जब आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी करो तो भी आप उसको सही करो. वो आप तभी कर पाओगे जब आप टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. बिल्कुल अलार्म क्लॉक की तरह कि मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं, 15 मिनट से कम में करने हैं, 10 मिनट्स में 30 क्वेश्चन करने हैं. योर टारगेट शुड बी लेस सो दैट व्हेन यू सॉल्व देम क्विकली यू सॉल्व देम करेक्टली. आई होप आई एम क्लियर. ट्राई तो करके देख सकते हो. आपका टारगेट टाइम होना चाहिए 30 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स फॉर द टॉपिक विच यू हैव रिवाइज्ड 5 टाइम्स, विच यू नो कि ये रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक है, इसी में से आना है. तुमको पता है हमने एनिमल चूज किया है, मोटा मोटा इन 4 में से ही क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा तो कहीं से नहीं आएगा. वो तो 30 क्वेश्चन 10 मिनट में आप करने चाहिए, आपको करने आने चाहिए, जिसमें असर्शन रीजन भी हो, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो. चूज द सेट ऑफ 30 क्वेश्चन. जो भी तुम्हारे पास बुक है, ठीक है, उसमें रैंडम क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे. प्रीवियस ईयर कम से कम 50 क्वेश्चन तो होंगे. डिवाइडेड इट टू हाफ्स, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू 5 हाफ्स. जंबल इट एंड डू इट. पिक अप एनी बुक. बिलीव यू मी, एवरीबडी इज अ कॉपी ऑफ वन अनदर. किसी में ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, किसी के अंदर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है. 19-21वां क्वेश्चन सेम ही रहता है यार.
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ी बदल देंगे, साहब के दिखेगा लाइनिंग थोड़ी बदल देंगे. इट्स गोइंग टू बी द सेम, दिखेगा कि बिलीव मी. आई एग्री, नहीं दिए होंगे, बट पॉइंट इज तुम्हारे पास तो बुक्स हैं. यू जस्ट हैव टू सॉल्व क्वेश्चन प्लीज. ऑनलाइन भी है, सब जगह है यार. कुछ नहीं, तुम 2012, 13, 14, 15, 16 के क्वेश्चन उठा लो. क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. मुद्दा क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. किसने दिए किसने नहीं दिए इस मुद्दा नहीं है. ठीक है. वी स्टार्ट विद नर्वस टिश्यू. जी हाँ, सॉरी, सीरम. प्लाज्मा कह सकते हो, ब्लड कह सकते हो, बिकॉज हम आरबीसीज तो इंक्लूड करेंगे ना. ऐसा तो नहीं कि सीरम में आरबीसीज नहीं होते. Plasma means blood plasma. We are talking about blood as a connective tissue. It's fluid as a connective tissue. So serum is going to be, you can say blood plasma minus clotting factors if you want to be more precise. गलत नहीं होगा, ठीक है. अगर आपको चूज करने को आए कि serum is equal to blood minus clotting factors, serum is equal to blood plasma minus clotting factors, so what are you going to choose over the other? Blood plasma minus clotting factor. वो थोड़ा अंडरस्टूड सा है, बट स्टिल इफ यू वांट टू मेक इट अ पॉइंट यू कैन, कि ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है बेटा. अभी चले आगे. नर्वस टिश्यू. मुझे ही गर्मी लग रही है या एक्चुअली गर्मी है? गर्मी ज़्यादा टेल देम ना यार प्लीज. और इधर क्लोज, जो डोर क्लोज है उसको ओपन कर दें. आई हैड टू टाई माई हेयर. मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने अपने बाल कटवा दिए, पता है. आई गॉट देम चॉप क्रॉप्ड. इतना मुझे गर्मी लग रही है. लगा है आई स्ट्रेट अवे वेंट फ्रॉम हियर. आई वाज सो हॉट. सर वो मेरे बाल काट दे सारे. फटाफट लाए. आपने कार्टून नहीं बनाया. गर्मी में पसीने में सारा पिघल जाता इफ आई राइट इट. It's so hot. I never thought August can be that hot. More than hot, I think it is more humid. Indeed, it's very humid. बारिश तो है नहीं, बट चलो समझ में आता है ह्यूमिडिटी है. कम से कम बारिश तो हो. वो कम बारिश हो जाती है, फिर उससे कुछ होता नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बस. Alright, चले. ये दरवाजा खोल दे पारुल बेटा प्लीज. Thank you. At least there'll be some ventilation. All right, nervous tissue, please. Last and the final tissue, which we are going to carry on with neural control and coordination. Can I give you a homework for Thursday? Can you please read the chapter neural control and coordination from 10th standard? जिसमें ह्यूमन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. 10वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो? हाँ, जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया है. आई वांट यू टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन. गूगल पे सब मिलता है. हाँ, 10th क्लास, इट्स 7th चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. 6th इज लाइफ प्रोसेसेस, 7th is neural control and coordination. हाँ, control and coordination. ठीक है. You don't have to read the plant part. Just read the animal part. ठीक है. Plant movements, plant hormones हमको नहीं करने. हमको क्या करना है? Brain, neuron. Yes. I'm going to ask questions. देखिए तुम 10वीं पास हो कि नहीं. एक आया था ना सीरियल 5वीं पास कौन? सबसे पहली बार वही था, माइमोसा ब्यूटी का प्लांट में वो स्कूल में करते हैं. अच्छा बताओ, वो मिमोसा पूटी का प्लांट कौन सी वाली मूवमेंट शो करता है? वो टैक्टिक मूवमेंट होती है और उसका एग्जाम्पल एक और लेना. टैक्टिक नहीं बोलते उसको, नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं. टैक्टिक तो मैम होगी ना, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. हाँ तो नॉन डायरेक्शनली होती है. टैक्टिक में काफ़ी होती है ना. एक तो नास्टिक होती है, एक और होती है, एक होती है
ठीक। नाम बताओ मुझे क्या बताऊँ? मिमोसा पुडिका की मूवमेंट का। हाँ तो यही तो आपने बोला नेस्टिक में कौन सी वाली नेस्टिक? डायरेक्शनल नहीं होती, इसकी नॉन डायरेक्शनल। कौन सी वाली नेस्टिक? मतलब आप कुछ बताओ। देयर इज अ टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, जैसे दैट ट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मो जैसे ये हाँ, जैसे ये थिग्मो नेस्टिक ये होगी तो टच से होती है ना थिग्मो। व्हेन आई टच यू, ओके कम हियर। नहीं मैम, नहीं 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 नहीं। टच क्यों करना है? टच ठीक है ठीक है, एक मैंने ऐसे टच किया हाँ है ना, एक मैंने ऐसे टच किया, हाँ। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पता नहीं, दोनों में लगी पड़ी है। नहीं आया समझ, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो? यही प्रेशर डिफरेंस है। तो ये बोल दे तो ये मूवमेंट होती है प्रेशर डिफरेंस। क्या बात कर रहे हो? दैट्स अ स्टिमुलस। व्हेन यू टच, व्हाट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस? बोल देना कि क्या मतलब रीजन क्या है तो मैं No, 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 no. I'm telling you कि whenever you decide a movement, you decide it on the basis of stimulus. हाँ Touch is not the stimulus. Stimulus is जो touch से change produce हो रहा है. What produces is the change in pressure. So change in pressure is the stimulus. So what is the name that you give to the stimulus? What is change in pressure? Is what I was trying to tell you. कि थिग्मो is not the stimulus. थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। वो तो मूवमेंट से जियोट्रॉपिक। हाँ, वो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होती है जो क्रीपर शो करते हैं। मिमोसा पुडिका जो टच से मूवमेंट करता है, दैट इज चेंज इन प्रेशर। स्टडी ऑफ प्रेशर इज नोन एज बैरोमीटर नहीं पास्कल पता नहीं हैव यू एवर हर्ड ऑफ सीएसमोनोलॉजी? no ओके, हैव यू एवर हर्ड ऑफ सीएसमो वर्ड? no इट्स प्रेशर। ये सुनो So the movement is seismonastic movement. how do you spell it SEISMO. CSMO. भाई ये नहीं आएगा रहने ये 10th 10वीं का है ये। क्यों नहीं आएगा? प्लान मूवमेंट्स है, प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। किसने बोला नहीं पूछते? ये नहीं। ये मैंने बोला आप पूछ लेंगे, पूछना होगा तो कुछ भी पूछ बिल्कुल। अगली बार से हम विनीत को बुलाएंगे टच मी नॉट। टच क्यों करना है? What's the scientific name of touch me not plant? Mimosa pudica. चले, sorry to write. We have to read about nervous tissue. Tissue is a collection of same kind of cells. Which type of cells join to form the nervous tissue? We have two types of cells which join to form nervous tissue. One is nerve cell or neuron. The other is, very good, neuroglial cells. Neurons and neuroglial cells, which make up more than or at least equivalent to 50% of nervous tissue. जितने न्यूरॉन्स हैं उतने ही, शायद उससे थोड़े ज़्यादा आपके पास कौन से हैं? न्यूरोग्लायल सेल्स। नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन या नर्व सेल का फंक्शन है ट्रांसमिशन। कंडक्शन कह सकते हो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है वो कौन करता है? एक न्यूरॉन। की क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है? व्हाट का आंसर कहाँ से आता है? न्यूरॉन से। ठीक है, हाउ, वाई, उन सब में सारे टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट व्हाट टू डू इज व्हाट इज डिसाइडेड बाय न्यूरॉन। उसको कंडक्ट करना, उसको जनरेट करना, उसको ट्रांसमिट करना, ये किसका काम है? न्यूरॉन का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरोग्लायल सेल इन स्पेसिफिक? कंडक्शन सारा काम सोचने का, करने का, पहुंचाने का तो न्यूरॉन ने कर दिया। अभी जो काम करना है न्यूरोग्लायल ने, वो क्या करेंगे? मेजर काम तो सारा हो गया। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। I'll buy that. Protection means defense.
support and protection. I'm sorry. मैम आपने जब से बोला कि गर्मी लग रही है तब से ज़्यादा फील होने लगी। प्लेसिबो इफेक्ट, राइट? प्लेसिबो ही तो कहते This हैं। is called transmission. Okay. When we talk of neuron and neuroglial cells independently, न्यूरॉन के कुछ टाइप्स है, न्यूरोग्लायल के कुछ टाइप्स है। फंक्शन हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट स्ट्रक्चर ईच हैव्स वेयर दे आर प्रेजेंट। तो ये जो भी नर्वस टिश्यू है, nerve cell will join to form nervous tissue, nervous tissue will join to form nervous organs, and nervous organs will join to form nervous system. What are the two types of nervous system which are present in our body? Easy one. कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चुप करो तुम विनीत, आज तुम टच मी नॉट। Wrong. Very good. Central nervous system and peripheral nervous system. Beta, autonomic is a part of peripheral nervous system. ठीक है? So when I talk of your nervous tissue, it will join to form nervous system. Which type of nervous system? Central nervous system and peripheral nervous system. तो जब ये nervous system बनाएगा, ये दो बनाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फॉर योर इंफॉर्मेशन, पेरिफेरल में आता है ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल में आता है सोमैटिक, ऑटोनॉमिक में आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अर्पिता, ठीक है? तो इफ यू वांट आई कैन राइट इट फॉर यू कि पीएनएस विल हैव, हेलो, हैप्पी बर्थडे, वेरी नाइस, आई एम सॉरी आई एम इन द मिडल ऑफ द क्लास, आई विल कॉल यू लेटर। ओके बाय। ANS is further divided into, okay, let's write somatic upar. Autonomic nervous system is further divided into Sima, how? Sympathetic and parasympathetic. Why talk? I had a call, I cut it because I was in the middle of the class. I could have spoken for half an hour and then come back. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली पीएनएस में आपके नर्व्स होते हैं। Why do we call it peripheral? Is for the reason which travel away from the center. Peripheral का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो सेंटर से दूर जाए। सेंटर से दूर क्या जाता है? नर्व्स, ठीक है? तो इसीलिए जितनी भी सारी नर्व्स हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, वो सब किसके अंदर आएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? पेरिफेरल मीन्स विच इज अवे फ्रॉम द center of the body. Peripheral means away from center. And what goes away from center? Nerves. All nerves. Sensory, motor, cranial, spinal, all kind of nerves will come under peripheral nervous system. हमारी कुछ नर्व दिखती है, कुछ लाइक आउटर बॉडी से कुछ नहीं दिखती, उसका कुछ सुपरफिशियल होती है, कुछ डीप होती है। बस यही है। Central nervous system, on the other hand, forms your brain and spinal cord. और मैम जो वो बॉडी बिल्डिंग और फिर वो जो होता है वो आपकी बॉडी का फैट कम हो जाता है ना, तो जब फैट कम हो जाता है तो हर चीज़ दिखने लगती है, इसलिए। वेट लिफ्टर्स को तो यही दिया जाता है ना, डायबिटिक स्टेरॉइड दिया जाता है, लिफ्टिंग वो वेट की रेंज करते हैं। मैंने कभी वेट ट्रेनिंग किया नहीं है, मुझे खासा आइडिया नहीं है, पर हाँ आई नो कि उनको ब्लैक कॉफ़ी पीने को देते हैं विच इज़ अ डायूरेटिक,
आई नो उनको स्टेरॉइड्स देते हैं सो दैट दे हैव इनफ स्ट्रेंथ. हाँ, तो क्योंकि स्टेरॉइड हैज़ एन एनाबॉलिक इफेक्ट. स्टेरॉइड इज लाइक कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल हैज़ अ प्रोटीन बिल्डिंग इफेक्ट एक तरीके से, है ना, एनर्जी बिल्डिंग इफेक्ट रादर आई वुड से, नॉट प्रोटीन बिल्डिंग. हाँ, इन सम सिचुएशंस. सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन, है ना. अदरवाइज तो हम बोलते हैं कि कॉर्टिसोल इज अ एंटी इंसुलिन टाइप का बंदा, प्रोटीन को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, ठीक है. बट when you give it in a combination with certain other things, it kind of helps you to build muscle. It's like that. अलग ही. Anything in excess for the body is harmful. कुछ भी ग्लूकोज भी एक्सेस दोगे वो भी हार्मफुल है, स्टेरॉइड एक्सेस दोगे वो भी हार्मफुल है, कोई ना कोई आफ्टर इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा. Why did we speak of central nervous system and peripheral nervous system is with respect to the neuroglial सेल्स. हम बोलते हैं जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं उनके जो टाइप्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अलग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए अलग है. दो दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, बट यू मस्ट नो कि जो आपका ये न्यूरोग्लायल कंपोनेंट है जो कि आपको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं. इसके सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखे जाते हैं, इसके सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखे जाते हैं, माने नर्व्स के अराउंड या फिर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 टाइप के न्यूरोग्लायल सेल्स देखे जाते हैं विद देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन. वी विल डिस्कस देम इन ब्रीफ. द वन मोस्ट टॉक्ड अबाउट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जिसका नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है. This oligodendrocyte basically is responsible for forming myelin sheath. Myelin sheath is an insulating sheath. It's a fatty layer. ठीक है. Myelin sheath एक fat layer है और ये fat layer insulator की तरह act करती है. Heat के लिए नहीं but impulse के लिए. It's an insulator for conduction of impulse. जहाँ ये present होगा वहाँ से impulse को कहीं पर भी जाने नहीं देगा, ना बाहर ना अंदर. ना कोई बाहर का इम्पल्स अंदर आ सकता है, ना अंदर का इम्पल्स बाहर जा सकता है. ये माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है. और ये माइलिन शीथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए कौन बनाता है? श्वान सेल्स. दोनों माइलिन बनाते हैं बट दोनों की लोकेशन अलग है. एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल्स के लिए बनाता है, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स के लिए बनाता है, ठीक है. देन दे से दैट वी हैव अ टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर नोन एज माइक्रोग्लायल सेल्स. दीज आर फैगोसिटिक सेल्स. These are phagocytic cells. They eat the debris, the unwanted antigen, the foreign body, हर चीज़ खा जाते हैं. Phagocytic, ठीक. Then you have a type of cells which are known as ependymal cells. See, epi का मतलब समझ रहे हो? Lining. एपी का मतलब क्या है? लाइनिंग. अ टाइप ऑफ लाइनिंग विच इज़ प्रेजेंट इन योर नर्वस सिस्टम. जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि एनिमल किंगडम में भी क्लासिफाई कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है. और हम बोलते हैं कि कॉर्डेट्स के 4 बेसिक फीचर्स हैं. दे हैव अ पोस्ट एनल टेल, दे हैव फैरेंजियल गिल स्लिट्स, दे हैव अ वेंट्रल हार्ट, they have a notochord, and there is one more feature. We say they have a dorsal hollow nervous system. पढ़ते हैं? dorsal hollow nervous system. अब nervous system में या तो ये है या तो ये है, या तो nerve hollow होगी या brain और spinal cord hollow होगा. क्या hollow होता है? nerves hollow होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हॉलो होते हैं. यू नो यू हैव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नाम सुना है?
कहाँ होता है ये फ्लूइड? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि ये अंदर से खोखले होते हैं. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैव कैविटीज इनसाइड देम. ब्रेन कैविटीज आर कॉल्ड ब्रेन वेंट्रिकल. स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कैनाल. सो दे बोथ आर hollow organs. They are filled with, and the hollow cavity is lined by which cells? Ependymal cells. अंदर से लाइन करते हैं. और जो लाइन करता है वो एपिथेलियल टाइप होता है, म्यूकोसा टाइप होता है. और म्यूकोसा में सारी क्या होती है? ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होती है? सिक्रीटरी. तो ये जो टाइप का न्यूरोग्लायल सेल्स है जो लाइनिंग ऑफ द हॉलो कैविटी का, इट वुड बी सिक्रीटरी इन नेचर एंड विल सिक्रीट विच फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. बात समझ में आती है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? वी हैव अ डोर्सल हॉलो central nervous system, and when I say hollow that means I have cavities, and these cavities of brain and cavities of spinal cord. क्या है वो cavities of brain and spinal cord? brain ventricles. कितने brain ventricles हैं जी हमारे पास? Very good. ये स्पाइनल कैनाल एंड वेंट्रिकल्स कितने हैं? 4. ऐसे ड्रॉ करते हैं कि 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल है, एक फोर्थ वेंट्रिकल है. दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड लेटरल वेंट्रिकल्स इन 4 ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल इन मिड ब्रेन, फोर्थ वेंट्रिकल इन हाइंड ब्रेन. Yes, and all these ventricles are filled. These are empty spaces which are present in brain. यहाँ पे ब्रेन बना देती हूँ तुम्हारे लिए. ये तुम्हारा ब्रेन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड. ठीक है, ये ब्रेन की एम्प्टी कैविटीज़ है और वो स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल कैनाल है. कैसी होती है स्पाइनल कॉर्ड? ऐसी सिलेंड्रिकल, आई कैन से. सेंटर से क्या होगी? हॉलो. This is the spinal canal which is filled with, this is cerebrospinal fluid. I don't know तुमने कभी स्कूल में लड़ाई करी है कि नहीं करी, या कभी किसी को मुक्का मारा है कि नहीं मारा, but this is one very common punch. When you hit somebody, you hit them here, you know, this bone. वाई? एक तो छोटी बोन होती है, जल्दी टूट जाती है, बंदा डर जाता है. दिस इज़, मुझे नहीं पता, पर ये सिखाया जाता है कि जब किसी को मारो तो या मारो. क्यों? या मारते ही हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूटते ही खून निकलने लगता है, बंदा डर जाता है, आगे नहीं मारता. तो ये पहला बचाव का सिम्टम होता है. दूसरी चीज़, जब आप उसको या मारते हो तो क्या होता है कि दिस इज़ अ क्रिप्रीफॉर्म प्लेट विच इज़ कनेक्टेड टू योर फोर ब्रेन. यू मे हिट इट हार्ड, you may hit it hard that you kind of rupture the membranes which are covering your brain. So ये membranes की covering में भी होता है. तो जब आप उसको इतना hard अगर hit कर दोगे तो actually cerebrospinal fluid भी leak करने लगता है. So it comes with blood, yellow with blood. जैसे railway track होता है ना, वैसी लाइनें नज़र आती हैं, yellow red yellow red yellow red when it comes out. तो समझ लो कि तुमने उसको ज़्यादा ज़ोर से मार दी. So this is what cerebrospinal fluid is present where all? Brain cavities as well as in brain and spinal cord coverings. क्योंकि दोनों की covering भी क्या होती है? Common होती है. We'll read when we read nervous system, but you should know कि जो cerebrospinal fluid है ये बनाता कौन है? It is formed by neuroglial cell. Which neuroglial cell? जो lining cells होते हैं. कौन से वाले हैं lining cells? अब याद रहेगा? So what do? These are the lining of hollow cavities of brain and spinal cord. Secrete
cerebrospinal fluid. And last of all the kinds is your astrocytes. स्टार शेप सेल्स होते हैं, तभी इनका नाम क्या है? एस्ट्रोसाइट्स. देखिए इनका क्या काम होता है, ये डुअल फंक्शन टाइप के लोग हैं, ठीक है. ये बैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है, और जो चीज़ नहीं चाहिए होती उसको हटाने का भी काम करते हैं. तो समवेयर दे रिमूव ऑल्सो, दे आर स्लाइटली फैगोसिटिक कह सकते हो, या रिमूवल के काम आते हैं. ये एक बैरियर बनाने के काम आती है. तुमने कभी नाम सुना है ब्लड ब्रेन बैरियर? ठीक है. सो दे आर प्रोटेक्टिव एज दे फॉर्म अ बैरियर. ये एक लाइनिंग, एक बैरियर बनाते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन. सो हु फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर? द एस्ट्रोसाइट्स. हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन बाय फॉर्मिंग अ बैरियर? एस्ट्रोसाइट्स. जी बेटा. नॉट एग्जैक्टली टाइट जंक्शन, बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर के अक्रॉस आपके H+ आयंस जा सकते हैं. टाइट जंक्शंस डू नॉट अलाउ एनीथिंग, दे सीलिंग स्ट्रैंड्स. तो इसलिए उनको टाइट जंक्शन बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है. और अगर ब्लड चले जाए तो आप समझ लो कि सारे न्यूरॉन्स का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है. सो एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म BBB, that is blood brain barrier. Minimum that you're supposed to know for your neuroglial cells. Last of the peripheral nervous system. जैसे एस्ट्रोसाइट्स है ना बैरियर फॉर्मिंग सेल्स एंड प्रोटेक्टिव सेल्स, वैसे ही हमारे पास एक सैटेलाइट सेल्स होते हैं which are present in your peripheral nervous system. Satellite cells which are again protective, barrier and phagocytic. So that was about your cells which make up more than half of your nervous tissue, that is neuroglial cells. Now let's talk about the other half of the nervous tissue, that is your neurons, nerve cell, which you also call as nerve fiber. जैसे मसल फाइबर है वैसे ये भी क्या है? Nerve fiber. If you're done, let me know, I'll rub it. क्या बनाते हैं? Protective barrier. जैसे इसका नाम फाइबर है वैसे मसल फाइबर. मसल सेल को क्या बोलते हैं? मसल फाइबर. वैसे ही न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर. क्लियर? चले आगे. उसके सब पार्ट्स जैसे कि सेल बॉडी. कंपोनेंट्स होंगे. व्हाट इज DHT? आई एम सॉरी. DHT In terms of hair. hair follicle, hair extension, hair chemical, hair disease. वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे स्कैल्प पे DHT. Not that I'm aware of. Maybe if I can read the text, I can guide you through. हाँ जी बेटा जी. Astrocytes form blood-brain barrier. Blood-brain barrier. BBB. Neurons. I'm rubbing this. Shall I? Dihydrotestosterone. It helps in Play a significant role in hair loss. See, now you're talking about baldness. Baldness is a sex-limited kind of a feature of your body. Why we call it sex-limited? Because it is with respect to the hormones which are produced in the body in more amount. In men, testosterone is produced more in amount. A type of androgen dihydro, जो आपका testosterone है, is the one which is responsible for loss of hair at an age more than 40. So post 40 men usually start losing their hair because of the genetic factor, which is a sex limiting character.
ये वो फीचर है. आज के टाइम पे गायनेकोमेस्टिया कॉमन हो गई, मतलब पता नहीं. I'll tell you why. Yes, very talked about factor in today's time, especially in terms of andrology कहते हैं हम इसको, हाँ, मेल स्टडी को, कि because of the eating habits, because of the lifestyle and because of the alcohol consumption which has increased in today's time, this alcohol consumption has led to more fat deposition in the breast zone of men, which is led to the production of gynecomastia. So there has been a study which has been done, which is yet under its observation, कि what if we decrease the alcohol content, does it cure gynecomastia, does it reverse gynecomastia? What if we give cholesterol lowering agents, will it reverse gynecomastia? Or what if we put them into muscular exercises, will it further build gynecomastia, lose it? So we are yet into the surfing zone. सर्जरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं. Easy way out ना, कट के निकाल दो. सोयाबीन लेसिथिन से भी होता है. च्युइंगम के अंदर बहुत होती है एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ऐसे तो खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, यू कैन बी स्पेसिफिक, है ना. तो वन मेटाबॉलिक पाथवे इज व्हाट यू कैन ऑलवेज सजेस्ट. शैल वी? See, when you become a doctor, I would advise you there are medical journals which are published every week, huh? Which are published by PubMed, which are published by other international societies. Must read them. जैसे हफ्ते के हफ्ते इकोनॉमिक टाइम्स आता है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है, वैसे ही आपके मेडिकल जर्नल्स भी आते हैं, उनको ज़रूर पढ़ें. बिकॉज एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू नो थिंग्स what is under research, and if you don't read you would not know. keep up with things. Yes, very important. So you have to make a choice. Friday के Friday movie देखनी है या PubMed का जर्नल पढ़ना है. Good at coding stuff. I'm sorry? That's okay. उसको कहना अलाउड नहीं है मेरी क्लास में. सेकेंड टाइम आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू. सिर्फ मेरे को कहना अलाउड है. न्यूरॉन्स. ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर. व्हेन वी रीड अ न्यूरॉन we read about its structure. We say on the basis of structure a neuron can be apolar, इसके बाद करना कोई पढ़ाओगे. unipolar, yes, bipolar, multipolar, and we have one pseudo unipolar. इसके बाद हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही लेंगे. इज व्हाट वी हैड डिसाइडेड. सो वी से व्हेन वी टॉक ऑफ अ न्यूरॉन, उसके पास एक बेसिक सेल बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड ये साइटोप्लाज्म में कुछ बेसिक स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बेसिकली निसल्स ग्रैन्यूल हम कहते हैं. है कुछ नहीं बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन है, राइबोसोम है उसके अंदर. आप उसको राइबोसोम भी बोल सकते हो, आप उसको ER भी बोल सकते हो, आप उसको रफ ER भी बोल सकते हो, आप उसको प्रोटीन भी बोल सकते हो. तो अगर निसल्स ग्रैन्यूल पे क्वेश्चन आए व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ RER. अगर उसमें लिखा हो कि इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम तो भी गलत नहीं है. लिखा हो प्रोटीन तो भी गलत नहीं है, बिकॉज राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन. सो यू हैव टू मार्क द मोस्ट रिलेटेड ऑप्शन. ठीक है. सो निसल ग्रैन्यूल्स आर बेसिक स्टेनिंग एग्रीगेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल बॉडी में तो पाए जाते ही जाते हैं, साथ साथ इस सेल बॉडी की एक्सटेंशंस होती हैं. अगर इसके पास कोई एक्सटेंशन नहीं है तो ये क्या है? एपोलर. ठीक है. एंड कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, ओनली सेल बॉडीज, कोई एक्सटेंशन नहीं है, उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं. कि अगर मेरे पास एक नर्वस टिश्यू में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, सिर्फ न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ है,
So aggregation of cell bodies is known as ganglion. ठीक है, अगर इस सेल बॉडी के पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन माने वन सिंगल एक्सटेंशन, वी कॉल दैट वन सिंगल एक्सटेंशन एज एक्सॉन. इस सिंगल एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? एक्सॉन. इस एक्सॉन में आपको निसेल्स ग्रैन्यूल देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर इसके अलावा उसके पास एक्सटेंशंस हैं, जैसे कि ये क्या है? डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स, सिंगल डेंड्रॉन मैनी डेंड्राइट्स, इसमें आपको निसेल्स ग्रैन्यूल देखने को मिल जाएंगे. ये ब्लू ब्लू क्या है? साइटोप्लाज्म. यस, जिसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म. रेड डॉट से जो ये किस जी, मैं लिख देती हूँ इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो जाओ. साइटोप्लाज्म, ठीक है. दिस इज nucleus. These are dendrites. This is axon. Now when I said it has only one extension, that extension has to be axon because the function of a neuron is to conduct a message, to transmit a message. अगर उसने कोई मैसेज जेनरेट किया है तो उसको आगे भेजना है ना. अगर उसके न्यूक्लियस ने कुछ सोचा है, समझा है, रिस्पॉन्स बनाया है तो उसको वो आगे भेजना है. मान लो वो रिस्पॉन्स ये बनाया उसने, अब उसको वो रिस्पॉन्स आगे भेजना है. वो आगे कैसे भेजेगा? बाय द हेल्प ऑफ axon. So axon is that extension which carries the impulse away from the cell body to some other structure. जो सेल बॉडी से दूर मैसेज कंडक्ट करे वो कौन सी वाली एक्सटेंशन है? एक्सॉन. तो अगर उसके पास एक ही एक्सटेंशन है, उसका काम है मैसेज भेजना, तो वो भेजेगा किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू. सो एक यूनिपोलर के अंदर हमारे पास क्या होगा? ओनली वन एक्सटेंशन, एंड ये वन एक्सटेंशन कौन सी होगी? एक्सॉन. Axon is an extension of the cell body of neuron. ये जितना भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें न्यूक्लियस है, डेंड्रॉन है, साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी. सेल बॉडी को साइटॉन भी बोलते हैं. ठीक, मेन सेल body which has a nucleus, which has a cell membrane, which has a cytoplasm. What is the cell membrane of a neuron known as? कोई कुछ बोला था. Cell membrane of muscle cell was known as sarcolemma. तो cell membrane of neuron will be known as neurilemma. ठीक है, it will be known as न्यूरीलेमा. विद रिस्पॉन्स टू एक्सॉन हम उसको एक्सोलेमा और एक्सोप्लाज्म बोलते हैं. कि एक्सॉन का साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन की मेम्ब्रेन एक्सो, एक्सोनल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या एक्सोलेमा भी बोलते हैं. ठीक है जी. अच्छा, where do you find these unipolar neurons? Mostly during the developmental stages of life in embryo. Where do you find these apolar neurons? Lower invertebrates.
Where do you find the bipolar neurons? Very good. Basically sense organs. One axon, one dendrite. See, this is how your apolar will look like. This is how your unipolar will look like. This is how your bipolar will look like. Basically, here the message conduction will happen in this direction. Here the message conduction will happen in this direction. ठीक है? I have one dendrite, one axon. This is axon. This is dendrite. And usually these bipolar neurons are present in your sense organs. टेस्ट बड में ले लो, रेटिना ऑफ द आई में ले लो. एक तरफ से मैसेज पकड़ा, दूसरे को दिया. टेस्ट बड, रेटिना ऑफ द आई. कौन से वाले न्यूरॉन्स होंगे? बाइपोलर न्यूरॉन्स. When we talk of multipolar neurons, many dendrites, typical diagram of a neuron. You have multiple dendrites, one axon. Axon is always one. एक ही जगह से कंडक्ट करेंगे ना. पैरेलल कनेक्शंस बना दिए या सीरीज कनेक्शन बना दिया तो मैसेज की जो सप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगी. वी वांट द मैसेज टू गो एज इट इज, सो वी वांट ओनली वन एक्सॉन. डेंड्राइट्स में बहुत सारे आते हैं फिर एग्जाम. एग्जैक्टली. इंटरप्रिटेशन आप बहुतों से ले सकते हो, बट जो एक मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है वो आप किससे करोगे? एक्सॉन से. एंड जब आप उसको फॉरवर्ड करते हो, है ना, तो ये जो एक्सॉन है ये फर्दर अपना एक टिप पे ब्रांचिंग शो करता है. मैसेज कंडक्ट करते हो, आगे भेजते हो. इस ब्रांचिंग को हम बोलते हैं टर्मिनल आर्बोराइजेशन. आर्बोराइजेशन मैंने टी के जैसा, ट्री के जैसा ब्रांचिंग शो करना. आर्बर वर्ड इज फॉर ट्री. ठीक है. ये जो टर्मिनल आर्बोराइजेशन है बेसिकली फॉर्म्स नर्व एंडिंग्स. ये क्या बन रही हैं? nerve endings, and these nerve endings terminate at these round bulb like structures. ठीक है. These bulb like structures basically form connection with the next thing जिसको मैसेज दिया जा रहा है. जो भी वो next thing है, that next thing could be a muscle, that next thing could be a gland, the next thing could be another neuron. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो वी से कि ये जो भी है ये किसी आगे वाले सब्सटेंस से, आगे वाले यूनिट से अपना कनेक्शन बनाएगा. वो मसल से भी कनेक्शन बना सकता है, वो ग्लैंड से भी कनेक्शन बना सकता है, वो एक न्यूरॉन से भी कनेक्शन बना सकता है. ठीक है. This terminal bulb-like structure is going to connect to somebody else, and this connection of a neuron with another unit, mostly with another neuron, is known as, this connection is known as synapse. This connection is known as synapse. Again, a cell-to-cell junction of animal cell. जैसे एपिथेलियल सेल के सेल टू सेल जंक्शन थे, कार्डियक मसल के सेल टू सेल जंक्शन थे, वैसे ही न्यूरॉन का भी न्यूरॉन सेल विद अनदर सेल का जंक्शन है. उसको हमने क्या बोला? साइनैप्स. ये साइनैप्स से पहले वाला है, ये साइनैप्स के बाद वाला है. ठीक है. तो जो साइनैप्स बनाता है उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये साइनैप्स बनाता है, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम साइनैप्टिक नॉब बोलते हैं. What do we call it? Synaptic knob, which acts as a presynaptic membrane.
इसका नाम क्या है? साइनेप्टिक नॉब, क्योंकि ये साइनैप्स बनाएगा और ये नॉब लाइक है, ठीक है। इस साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? दिस साइनेप्टिक नॉब हैज वेसिकल्स, जिनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल्स होते हैं जिनके थ्रू नर्व अपना मैसेज आगे पहुंचाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम न्यूरोट्रांसमिटर्स। वी कॉल देम न्यूरोट्रांसमिटर्स, ठीक है। नाउ व्हेनेवर, यहां तक किसी को कोई डाउट है? आर्बोराइजेशन, ARBORIZATION, आर्बोराइजेशन। ऐसे ही जो पॉइंट है जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है बेटा, उस पॉइंट को हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। जहां से एक्सॉन का बिगिनिंग हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। जहां पे वो एंड होकर टर्मिनल नर्व एंडिंग्स बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। इसको आर्बोराइजेशन मतलब ये जो एक्सटेंड ब्रांचिंग। और वो ग्रीन पार्ट वो साइनेप्टिक नॉब, नहीं साइटोन। हाँ। And where do you find these multipolar neurons? Central nervous system. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में आपको कैसे न्यूरॉन्स मिलेंगे? मल्टीपोलर। वेयर डू यू फाइंड दिस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन? स्पेशली 10th की एनसीईआरटी में लिखा है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। जो डायग्राम बनाया हुआ है ना रिफ्लेक्स आर्क का, उसमें लेबल किया हुआ है। नो क्लू? रिफ्लेक्स आर्क में कौन बनाते हैं वो? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड? तो एटलीस्ट ये तो बोल सकते थे कि मैम स्पाइनल कॉर्ड में होगा। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्टार क्वेश्चन मार्क। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, dorsal is sensory, ventral is motor. ये कैसा दिखता है? अपीयर करता है जैसे इसके पास एक ब्रांचिंग है, पर एक्चुअली में इसके पास ब्रांचिंग नहीं होती। So it's kind of a डॉर्सल मतलब पीछे। yes. It's called a branching. लगता है कि it is with one pole but it doesn't have a pole at all. ठीक है, it's a pseudo unipolar. Rather you draw it like this. Pseudo unipolar neuron present in dorsal root ganglion of spinal cord. ठीक है? अच्छा, what time is it? अभी तो है 10 मिनट, तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन लाइक 80 मार्क्स। 80 मार्क्स इज लाइक thousands of ranks. Think like that. Yes. Yeah. Now, when we have spoken about the structure, in terms of its extensions, structure in terms of extensions, there is another component to structure, that is in terms of membrane coverings. We say whether it has a myelin sheath or it doesn't have a myelin sheath, non-myelinated or
myelinated. So non-myelinated is what we've drawn here. The typical diagram that you can see. The myelinated neuron on the other hand. See, I'm not going to draw the dendrite part, but yes, I'm going to draw the myelin sheath part. Now, how the myelin sheath is present and how it is formed. Typically, आपको बताया जाता है कि हमारे पास एक Schwann cell होता है. क्या होता है? Schwann cell. This Schwann cell basically wraps around the nerve membrane. उसके axon की membrane को क्या करता है? Wrap करता है. ठीक है? और wrap कैसे करता है? It forms a spiral, जलेबी जैसा. You know, it kind of coils like this. And surrounds it. Toilet roll की तरह. गोल 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 गोल. Around the axon of the neuron. ठीक है? And it is present at intervals. It's not continuous. जहाँ पे Schwann होगा, अब ऐसा नहीं कि चिपके चिपके होते हैं, उनके बीच में गैप होता है. So there are areas where there is no myelin sheath. इनको हम बोलते हैं nodes of Ranvier. 10वीं क्लास अगेन. ठीक है, they are nodes of Ranvier where myelin sheath is not present. Myelin sheath which is formed by the Schwann cell, ठीक, which definitely ends in terminal nerve ending with synaptic knob, synaptic vesicle and your neurotransmitter. What happens? The message is collected from here. It's passed here.